Hello dear students, today we are going to see our second poem, Wind. It is from Beehive Book of English. The poem is written by Subramanyam Bharati. He is great Tamil poet and the poem was written in Tamil first, but it was translated in English language by A.K. Ramanujan. So he is Kannada and English poet A.K. Ramanujan, and he had translated this poem into English. So let's begin the poem, Wind. In this poem, the poet is talking about destructive and constructive wind. He says that the wind is destructive, it destructs so many things, and it is constructive also. If we take the wind in a right way, then it is constructive. So, the poet is talking about our problems and he requests us to be strong in order to achieve all success in your life. He says that you should not weak mentally और फिजिकली, यू शुड बी स्ट्रांग फिजिकली और मेंटली. आप जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं आपकी लाइफ के. वही इस पोएट में बताया इस पोएम में बताया पोएट ने बहुत ही अच्छी तरीके से. वो बता रहे हैं कि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में और वो और भी कमज़ोर बनते जाते हैं. और अगर आप स्ट्रांग हो, किसी चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो, तो फिर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो. सो विल रीड दिस पोएम. Wind, come softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw the books on the shelf. So in the beginning line of the poem, the poet says that wind, you should come softly, you don't come fast, and as well as you don't break the shutters of the windows. जो shutters होते हैं विंडो के, वो ब्रेक नहीं करना, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड को हमारे पोएट. वो बोलते हैं कि यू डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो. जो विंडो के शटर्स होते हैं, जो हम क्लोज़ करने के लिए विंडो यूज़ करते हैं जनरली, तो उसको आप ब्रेक मत करो, क्योंकि बहुत तेज़ अगर हवा आती है, बहुत तेज़ अगर विंड आती है, तो वो ब्रेक कर देती है बहुत सारी चीज़ें. देन ही अगेन urge and request that don't scatter the papers. Scatter यानी to spread here and there. So you don't scatter the papers को तुम इधर उधर ऐसे बिखेरना नहीं, इसको फेंकना नहीं इधर उधर. Because of wind, what happens sometimes, the papers get scattered. Don't throw down the books on the shelf. And then he requests that the books are there on the shelf. जो उस shelf में books है, उनको भी आपको थ्रो नहीं करना है, इधर उधर फेंकना नहीं है, क्योंकि विंड अगर बहुत तेज़ आती है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. सो इन द बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम, द पोएट इज सेइंग दैट wind, if come fastly, then wind may create some problems for us. So then he says that, there, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. Then the poet says that, there, look what you did, wind, look there what you have done, you have thrown them all down. Actually, I have requested you not to come so fast, but you have come fast and you threw all them down. You tore the pages of the books. It is, tore is the second form of tear, फाड़ देना. So the pages were torn. pages को जो है ना फाड़ दिया गया है, books के pages को. And the wind brought rain also. So wind की वजह से वहाँ पे rain भी आ गई है, बारिश भी वहाँ पे होने लगी है. And the poet says that the wind is very clever at poking fun at weaklings. So poking fun, it means to make fun of something. So weakling means such a people who are weak. जो ऐसे लोग जो बहुत weak होते हैं, या ऐसी चीज़ें जो बहुत कमज़ोर होती हैं. So he is talking about the wind, and he's saying that wind is very clever, that wind makes fun of weaklings. Wind make fun of the peoples or things which are weak. जो weak चीज़ें हैं, बहुत ही कमज़ोर चीज़ों का फ़न बनाती है, मजाक बनाती है विंड, उनके साथ खेलती है. क्योंकि विंड से पहले रिक्वेस्ट की गई है कि बहुत तेज़ी से नहीं आना है, बहुत तेज़ी से नहीं बहना है, लेकिन विंड बहुत तेज़ी से बहती है. और विंड ने बहुत सारी चीज़ों का जो यहाँ पे लॉस कर दिया है, कि पेपर फाड़ देना या रेन को रिटर्न लाना. इस चीज़ की वजह से जो पोएट है कह रहे हैं कि जो वीकलिंग्स है, जो बहुत पर्सनस या थिंग्स है जो बहुत ही वीक है, उनको विंड जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स में घेर लेती है. इसलिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए. देन फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड,
crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts. So फ्रेल मीन्स वीक. फ्रेल का मीनिंग होता है कि जो वीक होते, कमज़ोर होते. क्रम्बलिंग यानी टुकड़े टुकड़े कर देना या बिखेर देना किसी चीज़ को, टू स्प्रेड समथिंग. सो the poet says that frail crumbling houses, crumbling doors and crumbling rafters, crumbling wood. So he says that जो ऑब्जेक्ट्स है, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि हाउसेस, जो हाउसेस को क्रम्बल कर देती है विंड. अगर हाउस बहुत कमज़ोर है, फ्रेल है, तो वो भी गिर जाएगा विंड की वजह से. डोर्स भी अगर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो भी गिर सकते हैं, क्रम्बल हो सकते हैं. और राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होता है, जो लकड़ी से बनाया जाता है, जैसे कि आई विल शो यू इमेज. दिस इज़ राफ्टर्स विच इज़ मेड बाय वुड एंड स्टिक से के ज़रिए बनाया जाता है. ये राफ्टर होता है इस प्रकार से. तो इसको भी विंड जो है ना ब्रेक कर देती है बहुत बार. सो द पोएट इज सेइंग दैट वॉट एवर इनएनिमेटेड थिंग्स आर देयर, द विंड मेक्स देम क्रम्बल. उनको क्रम्बल कर देती है, हाउसेस, डोर्स और रेफ्टर्स और वुड्स को. देन ही टॉक्स अबाउट बॉडीज एंड लाइव्स ऑल्सो. ही सेज दैट क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स. एक्चुअली सो बॉडी को क्रम्बल करने का मीनिंग क्या हो सकते हैं यहाँ पे, कि कुछ लोग होते हैं जो फिज़िकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, जो बॉडी यानी पर्सन्स, और उनकी जो लाइफ है वो भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है, और उनका हार्ट भी बहुत नेगेटिव माइंडेड होता है, यानी इमोशनली कुछ चीज़ें जल्दी कर लेते हैं. ऐसे लोगों को भी विंड जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. सो द पोएट इज सेइंग दैट वी शुड पॉजिटिव इन आवर लाइफ, वी शुड फेस आवर प्रॉब्लम्स, वी शुड फेस challenges happily. Why? Because if we are not strong, then we may get problems. If we are strong enough to face any challenges in our life, then no one can harm us. हमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है अगर हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. So the poet says that the wind god is there. So wind का जो god है यानी वायु देवता हम बोल सकते हैं. So बहुत सारी देवताएं होती है, जैसे अग्नि देवता. So the poet is talking about wind god, and wind god winnows and crushes them all. So winnowing की एक जो टेक्निक होती है जिसमें हम ग्रेन्स में से जो डस्ट या अननेसेसरी चीज़ें को सेपरेट करते हैं बहुत बार. सो आई विल शो यू विनोइंग. इन दिस इमेज यू कैन सी दिस वुमेन्स आर विनोइंग grains. You may have seen it at your home or in your village that some women winnow sometime grains to separate some unnecessary things from the grains. So यहाँ पे जो पोएट हमें बताना चाहते हैं कि वेट sorry, call was there. So here the poet is saying that by doing this winnows करने से क्या होता है कि जिसमें ग्रेन्स में से जो छोटे छोटे चीज़ें होती है जो अननेसेसरी होती है उसको बाहर फेंक दिया जाता है ऐसे विंड की वजह से. तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि हम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे ग्रेन जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है, फिर आप अगर एग्जांपल लेते किसी गेहूं का या चावल का, वो जो है ना नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसमें जो भी अननेसेसरी चीज़ें आई वाली है जो बहुत ही वीक होती है, जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता, वो विंड की वजह से बह जाती है, जल्दी से बाहर फेंक दी जाती है. सो ऑटोमेटिकली इफ़ यू आर वीक देन यू विल बी थ्रोन आउट आउटसाइड. आप अगर वीक हो तो ऐसे ही आपको विंड की गॉड है वो आपको बाहर फेंक देती है, और अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको एक जगह पे यूनाइट करके रखती है. सो दैट इज़ द पोएट वांट्स टू से बाय दिस विनोइंग से ये बताना चाहते हैं कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, जो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी. सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो द विंडो डजंट लिसन टू अस, द विंड डजंट लिसन टू अस. वो हमारी सुनती नहीं है, आप जो बोलोगे वैसा तो वो करेंगे नहीं. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम. सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड बिल्ड स्ट्रांग होम. Let's join the doors firmly. Firmly means in a strong way. So the poet urges us to say that. He says to build strong homes so that the wind would not be affected on your home. So wind की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपके हाउसेस स्ट्रांग है, आपका डोर स्ट्रांग है, फर्म है. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर बॉडी शुड बी फर्म, योर बॉडी शुड बी स्ट्रांग. आपकी जो बॉडी है, आप मेंटली और फिजिकली आप स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर आप स्ट्रांग नहीं हो मेंटली और फिजिकली, देन यू मे गेट मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ.
मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, तो आप आपके हार्ट को भी स्टेड फास्ट करो. डोंट गेट इमोशनली blackmailed by someone or emotionally attached so fast. So you should listen to your heart, but do whatever you like and what is best for you. Do this and the wind will be friend with us. So then the poet says that if you'll make your house strong, if you will practice to be strong as well as mentally and physically strong, and if your heart is good enough to face any challenges in your life, then the wind will become फ्रेंड ऑफ यू. सो विंड जो है आपकी फ्रेंड बन सकती है इस चीज़ को लेके. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड द थिंग इज़ दैट द विंड ब्लोज आउट ओनली वीक फायर. जो वीक फायर है, जो वीक होते हैं, उनको ही विंड जो है ना बुझा देती है, ब्लो आउट कर देती है. जैसे कि आप दिया देख सकते हो, आप बाहर रखोगे विंड में तो दिया जो है ना बुझ जाएगा सो फास्ट. He makes strong fire roar and flourish, but if there is a strong fire then he makes roar and flourish. अगर वहाँ पे उसी की जगह पे, दिए की जगह पे अगर कोई strong fire है तो वो और तेज़ी से जलने लगेंगी. यहाँ वहाँ पे सारी जगह पे जो आग लग जाएगी. यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ फायर इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जब फायर लगती है तो विंड की वजह से पूरा फायर ऐसे जलने लगता है, और वो जो आग होती है ना बहुत ही तेज़ और स्ट्रांग आग होती है, तो उस आग को विंड भी रोक नहीं सकती, उसको और बढ़ावा देती है, ऊपर तक लेके जाती है. सो इन दिस वे द पोएट इज सेइंग दैट इफ़ यू आर वीक नो देन यू विल बी ब्लो आउट बाय समवन. आप अगर वीक हो तो आपके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स में आना पड़ेगा बहुत बार अगर आप वीक हो. लेकिन उसी की जगह पे आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो तो विंड या कोई भी जो भी सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ की, वो भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकती है. You will be strong and you will face all your problems in the life by being positive minded. So his friendship is good, we praise him every day. Then in last stanza, in last two lines, the poet says that the friendship with wind is very good. So wind के साथ आपको friendship करनी चाहिए. आपके जितने भी सारे problems है उनके साथ भी आपको फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स की आदत डाल लेनी चाहिए हमें. प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आता है. देयर इज़ नो वन इन द लाइफ दैट विल नॉट हैव प्रॉब्लम. एक भी कोई पर्सन नहीं होगा इस वर्ल्ड में, देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड हु इज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स. सबको प्रॉब्लम्स होती है, बट वी शुड फेस द प्रॉब्लम एंड वी शुड डू समथिंग गुड. हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए. एंड वी प्रेज हिम एवरी डे. अगर आप फ्रेंडशिप कर ले तो विंड के साथ, तो आप उसकी प्रेज करोगे, आप उसकी स्तुति प्रशंसा हर रोज करोगे. सो इन दिस वे द पोएट इज सेइंग दैट बी स्ट्रांग, डोंट लूज योर हर्ट्स इन एनी सिचुएशन. दैट इज द मैसेज poet is giving by this poem Wind. So I hope you have understand this poem.